Hello everyone. Good morning to all. Welcome you all in today's my class. In today's class, I will start our geography chapter 3, that is water resources. And today in this chapter I will explain you map skill uh, because theoretical part is not evaluated in this session in our board exam. Only map items of this chapter as listed above will be evaluated in board examination. Okay, so in this chapter, in map of India, only locating and labeling dams. So that's some dams are: first Salal, second Bhakra Nangal, third Tehri, fourth Rana Pratap Sagar, fifth Sardar Sarovar Dam, sixth Hirakund Dam, seventh Nagarjun Sagar Dam, and eighth Tungbhadra dams. These all dams are located in locating in labeling in map of India. Uh, so if you know which state these dams are situated, so very easily you will map. So next I will tell you state of these dams where situated. So first dam Salal. These dams are situated in Jammu and Kashmir state. Okay, and second Bhakra Nangal dams. These dams are two dams, first Bhakra and Nagal. So these dams are situated two states, first Himachal Pradesh and second Punjab border. So these two state border areas, these dams are situated. So if you know where Himachal Pradesh and Punjab border, so very easily you labeling these dams, this dam. So next Tehri Dam is situated in Uttarakhand state. Okay, and Rana Pratap Sagar Dam is situated Rajasthan state. In next Sardar Sarovar Dam is situated in Gujarat state, and Hirakund Dam is situated in Odisha state. Next Nagarjun Sagar Dam is situated Andhra Pradesh state, and Tungbhadra uh, dam is situated Karnataka state. Next I will show you explanatory video with locating and labeling these all dams with state. So carefully watch this video. Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video we are going to discuss the map work of class 10th geography's third chapter, which is water resources. So let's begin. तो मैंने पहले भी ज्योग्राफी के ऑल मैप्स का एक वीडियो बनाया जिसमें उतना एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वो रिवीजन पर्पस से था ताकि क्विक रिवीजन हो जाए ऑल मैप्स का. तो पर आज जो ये सिलेबस हम कर रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आने वाला है. चैप्टर 3 का जो मैप वर्क है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा, थ्योरी नहीं आएगा, बट इनका मैप वर्क इम्पॉर्टेंट है. तो इसी भी साथ में हमें इंक्लूड करना होगा अपने ऑल मैप्स में. तो ये देखिए आज का सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है. द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली. जो थ्योरी है वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा and will not be evaluated in board examination. However, the map items of this chapter as listed above will be evaluated in board examination. But फिर भी जो map items हैं इस chapter के इन्हें board exams में पूछा जाएगा, तो ये भी important हो जाता है. तो कंप्लीट मैप वर्क में चैप्टर 3 का भी मैप वर्क इंक्लूड होना चाहिए. तो देखते हैं वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हमें करना है. लोकेट करना है और लेबल करना है. डैम्स सलाल, भाखड़ा नंगर, तेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर,
and Tungabhadra. And for all maps video, I will put the link in the description box, so don't forget to check it out. तो फर्स्ट है सलाल डैम। ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और जो रिवर जिस पे सिचुएटेड है वो चेनाब है। तो यहाँ इसका लोकेशन देखिए जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट भाखड़ा नंगल डैम, तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। मार्क करना है इसे हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे एकदम यहाँ पे, और ये सतलज रिवर पे सिचुएटेड है। इसका हाइट है 225 मीटर्स और लेंथ है 520 मीटर्स। नेक्स्ट टेहरी डैम जो है अब इंडिया का हाईएस्ट और लार्जेस्ट डैम है। ये उत्तराखंड में है और इसे यहाँ मार्क करें। ये जब गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ से जो गंगा निकलती है उसे हम भागीरथी कहते हैं, और ये भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया गया है टेहरी डैम। तो पहले भाखड़ा नंगल जो था वो था हाईएस्ट और लार्जेस्ट डैम, बट जब से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ ये हो गया हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा डैम। तो इसका हाइट है 261 मीटर्स और लेंथ है 575 मीटर्स। तो ये टेहरी डैम है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे के डैम्स। तो अब हमें बताना है राणा प्रताप सागर डैम। तो ये महाराणा प्रताप से के नाम पे है और ये राजस्थान में लोकेटेड है। हमें राणा प्रताप सागर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ होगा, राजस्थान में। तो ये देखिए ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के पास लगा लेना है इसे, राणा प्रताप सागर डैम को। और ये जिस रिवर पे है वो चंबल कहते हैं उसे हम, चंबल रिवर पे ये सिचुएटेड है राणा प्रताप सागर डैम। तो इसका लोकेशन यहाँ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये सरदार सरोवर डैम। तो ये गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, और हमें अगेन नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ये बनाया गया है। अब उनके नाम पे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड में। तो बहुत इजी है ये डैम लोकेट करना, सरदार सरोवर डैम। और जिस रिवर पे है ये है नर्मदा पे। तो हमारे बुक में इसके बारे में चैप्टर में हिंट भी था कि क्यों लोग एजिटेशंस कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब। नेक्स्ट है हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम उड़ीसा में है और ये महानदी रिवर पे है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा डैम है इंडिया का। तो इसकी जो लेंथ है वो है 26 किलोमीटर, हीराकुद डैम, और ये महानदी रिवर पे है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम है। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर डैम। तो ये देखिए कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे इसको मार्क करें, और ये कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। नागार्जुना सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम। तो ये कर्नाटक स्टेट में है, कर्नाटका में है तुंगभद्रा, और ये तुंगभद्रा रिवर भी और डैम भी दोनों एक नाम के हैं, तो इस पर ये कंस्ट्रक्टेड है। तो हमने सारे डैम्स कर लिए, साथ ही साथ उनके रिवर्स और स्टेट्स और कुछ फीचर्स को भी जाना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल मैप वर्क फॉर चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 10th वाटर रिसोर्सेज। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।